Welcome students. Now we are going to learn about circle. Before this we learnt about perimeter and area of various shapes like rectangle, square and triangle. Okay. So today what do you mean by circle? Circle is a closed rounded shape created by joining all the points which are at the fixed distance from the fixed point center. So देखिए, if this is a fixed point, this is called as center. Then these points are at fixed distance. ठीक है, these are various points at a fixed distance from the center. So when we join this all the points, when we join all these points, then it makes a circle. This is called as circle. Okay, so circle has a center, radius, diameter. ठीक है, diameter means हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल. देखिए, डबल ऑफ रेडियस, तो डायमीटर ये होता है जो पूरा सर्कल कवर करे, एंड रेडियस इज द हाफ. ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू पाई डी एंड c इज इक्वल्स टू 2 पाई r. ओके, सो circumference, that is circumference pi d. So circumference of a circle. Now we are going to learn about circumference of the circle. Observe the boundary of this tarpaulin. Okay, what do you call it? It is circular. Okay, so now the distance around the boundary of a circle is called as circumference of the circle. ठीक है, this is called as circumference of the circle. The boundary around the circle is known as circumference of the circle. In simple words, we can say that the circumference of the circle is the perimeter of the circle. Okay, तो perimeter क्या होगा? Circumference. Perimeter होता है जो distance along the boundary. ठीक है, तो देखिए distance along the boundary, the distance, this distance is known as circumference. So it means perimeter of circle is also circumference of circle. The ratio of circumference and the diameter is always constant in all circles. Okay, the constant ratio is known as pi. The ratio of circumference and diameter, ये देखिए diameter और circumference का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाई. तो वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 3.14. ठीक है, इन पॉइंट्स और इन फ्रैक्शनल 22/7. ठीक है, ये होती है वैल्यू. सो नाउ पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th March every year. March is the third month of the year, so 14th March can be represented as 314, that is 3.14, which is quite similar to the value of 3.14. तो हमें 14th March को हम पाई डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, तो ये एक नॉलेज की बात है आपके लिए. सो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर इज इक्वल्स टू पाई. ठीक है, तो 22/7 ये उसकी वैल्यू होती है. आप इसे 3.14 भी डिनोट कर सकते हैं. सो सर्कमफरेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर. ओके, दैट इज पाई डी. और सर्कमफरेंस इक्वल्स टू पाई इंटू 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 पाई आर. ओके, ये भी आप डिनोट कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. नोट दैट डायमीटर इज डी, रेडियस आर एंड सर्कमफरेंस सी. तो हम इसे इससे डिनोट करते हैं. Now here we are having some examples. Nisha cuts a circular design of radius 7 cm from the piece of paper and she wants to put the boundary around it by thread. Okay, how many centimeter of thread does she need? तो देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निशा ने कट किया सर्कुलर डिजाइन एंड नाउ शी वांट टू पुट द थ्रेड अलोंग द सर्कमफरेंस अराउंड द बाउंड्री. तो बाउंड्री के अराउंड पुट करना है, तो इसका मतलब हमें क्या पता है कि ये सर्कमफरेंस के अराउंड है. तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, तो 2 पाई आर, रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस इज आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो 2 पाई आर, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7. तो देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 2/22, दैट इज 44 सेंटीमीटर की थ्रेड उसे लगेगी. सो देखिए शी नीड्स 44 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, बिकॉज हमने इसमें वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया. तो देखिए ये बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे. नाउ अगेन वन मोर एग्जांपल हियर यू आर गिवन विथ व्हाट इज दैट? Nisha rolled a ₹5 coin of diameter 2.1 centimeter. It looks 10 complete revolutions and it took 10 complete revolution and stopped. Okay, so Nisha ने एक ₹5 का coin roll किया और छोड़ दिया. Then it took 10 complete revolutions and then stopped. She want to know the distance covered by the coin. How can she do it? तो अब देखिए अब क्या है, उन्होंने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस कितना कवर किया है. सो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको? 2.1 सेंटीमीटर.
सो देखिए सर्कमफरेंस हाउ यू विल कैलकुलेट, पाई इंटू डी, सो पाई इंटू डी, तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.1 इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दिस 22 इंटू 0.3, ठीक है, क्योंकि 7 1 जा और 7 0.3 जा, सो 6.6 सेंटीमीटर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रिवॉल्यूशन यू विल बी 5 इंटू 6.6 सेंटीमीटर्स, तो 33 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ है। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो नाउ वन मोर क्वेश्चन, सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो ये देखिए ये गिवन फिगर है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ओके, स्क्वायर है और ये 2 सर्कल्स का पार्ट है, तो आप इसे अगर कट करके देखते तो ये 2 सर्कल हो जाएगा, ओके। सो नाउ व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस एरिया, यूज पाई की वैल्यू 22/7, सो दिस इज 14 सेंटीमीटर्स। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस कर्व सी डी, ये कर्व सी डी और प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस कर्व एफ ए, ठीक है, एफ ए जो कर्व है उसको, तो कर्व सी डी इज इक्वल्स टू कर्व एफ ए, दैट इज क्वार्टर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, तो क्वार्टर क्या होगा, क्वार्टर होगा उसका 2 पाई आर अपॉन 4, तो क्वार्टर सर्कमफरेंस ये आ गया, ठीक है, दैट इज पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, ये हुआ आपका क्वार्टर, ठीक है। सो नाउ गिवन ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू आपकी आ गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पर। उसके बाद देखिए क्वार्टर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 22/7 इंटू 1/2 इंटू 14 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया आपने, ये ऊपर की आर की वैल्यू है, तो पाई ये क्या था हमारा पाई आर, ये देखिए ये था हमारा पाई आर अपॉन 2, पाई आर अपॉन 2 था, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की और जब सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू ये रही, उसके बाद 1/2 साइड कर दिया हमने और ये आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर्स। सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 22 सेंटीमीटर्स, सो पेरीमीटर विल बी 14 + 14 + 22, देन व्हाट यू विल गेट, देन +14 + 14 + 22, तो रिपीटिशन में ये आ गया आप क्या, तो आप जब सॉल्व करेंगे इसे तो यू विल गेट 100 सेंटीमीटर्स, दस द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज 100 सेंटीमीटर्स, ओके। सो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। नाउ एरिया ऑफ अ सर्कल, अब तक हमने देखा था पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एरिया ऑफ अ सर्कल। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ अ सर्कल? सो एरिया मीन्स वी नो दैट द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जर्व द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस ट्रैम्पोलिन, ओके। तो इससे जो स्पेस ऑक्यूपाइड हुआ है वो ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू कॉल इट? इट इज द सेंटर एंड द सर्कमफरेंस होल ऑक्यूपाइड बाय सर्कल, ठीक है। To find the area of circle, we need to cut it from the circumference to the center into small sectors and join them as shown below. So देखिए स्मॉल सेक्टर्स में हमें कट करना होगा इसे। देखिए ये जो है ये एक सेक्टर हुआ, फिर ये एक सेक्टर हुआ, फिर ये एक सेक्टर हुआ, इसे करके आपको इसे कट करना है। आफ्टर प्लेसिंग देम इन देम साइड बाय साइड इट लुक्स लाइक रेक्टेंगल, व्हेन वी विल प्लेस देम साइड बाय साइड इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, ओके। What is the formula of area of rectangle? Area of rectangle length into breadth होता है, okay, L into B, area of rectangle, okay. In above figure, length is equals to pi r and width is equals to r. Thus, area of circle is equals to area of rectangle. तो pi r into r, so you will get pi r square. pi r का square, r से r को multiply करोगे तो pi r square हो जाएगा वो। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। नाउ लेट्स ऑब्जर्व एन एग्जांपल, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर्स, यूज पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। सो रेडियस दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है एरिया, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई की वैल्यू 22/7 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। देन 14 की वैल्यू हम 14 इंटू 14 कर देंगे, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, एक 14 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये 28, ओके। 28 इंटू 22 यू विल गेट 28 इंटू 22, ठीक है। तो 14 2 जा 28 and then you will multiply by 22, so you will get answer 1616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहां देखिए निशा wants to decorate a flying disc for
एन आर्ट कॉम्पिटिशन. हाउ मच इज द एरिया दैट शी नीड्स टू डेकोरेट. ठीक है, फ्लाइंग डिस्क ये आपको दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन इफ द कॉस्ट पर एरिया इज पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 रुपीज. तो अब देखिए 7 सेंटीमीटर आप एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या मिल जाएगा आपको, पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7. ओके, तो यहां से एक 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 करना है आपको बस. सो यू विल गेट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10. सो 1540 रुपीज कॉस्ट होगा किसके लिए, डेकोरेट करने के लिए. ठीक है, सो आई होप यहां पर तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों. सो नाउ एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सर्कल विद इन द सर्कल. ओके, जिनका सेंटर सेम होगा. ठीक है, सो इमेजिन ये देखिए ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, बट दोनों का सेंटर क्या है, सेम है. सो दिस सर्कल्स आर कॉल्ड एज कोसेंट्रिक सर्कल. ओके, कोसेंटर मतलब दोनों का सर्कल सेम है, कॉन्सेंट्रिक. ठीक है, तो दोनों का सेंटर जो होता है वो सेम होता है. टू सर्कल्स शेयरिंग कॉमन सेंटर पॉइंट आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल. वी कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ सर्कल अराउंड द सेंटर. तो कितने भी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए ये 1 2 3 कितने भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर. तो दिस सर्कल्स आर नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल. Here you are given with the example that Nisha was playing on a dashboard. The radius of red circle is 2 centimeter and the radius of each circle after that is 2 centimeter more than the previous circle. तो इसका मतलब फर्स्ट सर्कल का 2 सेंटीमीटर है, तो अगले सर्कल का मोर देन इससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर होगा. फिर इसके जो नेक्स्ट सर्कल आएगा उसका 6 सेंटीमीटर होगा. ओके, सो ऐसे ये रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है. देखिए इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 4, तो इसका 6. शी वॉन्ट्स टू नो द एरिया ऑफ द पोर्शन शेडेड विथ ब्लू. तो देखिए ये जो था इसका एरिया उसे फाइंड करना है. तो वो क्या करेगी, तो वो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द रेड सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ येलो सर्कल इज फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ब्लू सर्कल फाइंड करना है हमें. सो पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6. सो 3.14 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने क्या लिए 3.14 ली है. ठीक है, सो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, यू विल गेट 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया ऑफ द रेड सर्कल का इतना आएगा, ब्लू सर्कल का हमारा ये आ गया. ओके, रेड सर्कल का 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन विथ ब्लू, तो शेडेड पोर्शन विथ ब्लू का क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विथ ब्लू, ये टोटल एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ येलो एंड रेड सर्कल. तो इन दोनों का सर्कल का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 62.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं. द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सरकमफरेंस 18 सेंटीमीटर इज. तो रेडियस ऑफ सर्कल विथ सरकमफरेंस 18 सेंटीमीटर. तो देखिए आपको पता है सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. ओके, तो C की वैल्यू आप पुट करेंगे 18, 2 पाई आर. तो देखिए 2 यहाँ नीचे आएगा, शिफ्ट होकर ये हो जाएगा 9. ठीक है, 9 इज इक्वल्स टू पाई आर. ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 9/पाई सेंटीमीटर्स. सो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9/पाई सेंटीमीटर्स. तो ये आपकी r की वैल्यू आ जाएगी. वैसे ही देखिए यहाँ पे विच ऑफ दिस सर्कल हैज द लार्जेस्ट एरिया, तो जिसका रेडियस लार्जेस्ट होगा उसका सर्कल का एरिया भी लार्जेस्ट होगा. तो देखिए ये वाला आएगा. ठीक है, उसके बाद देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर. सेमी सर्कल तो हाफ होगा. ओके, तो अब आपको क्या कहा है, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा है. तो पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल होता है. तो बस आपको वैल्यूज पुट करके यहाँ पे इसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लेट्स फाइंड आउट मोर. ओके, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स का कन्वर्शन कैसे करते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी निशा विथ हर फ्रेंड मेघना एंड उमा visited the medical room in school. Nisha stood against the measuring scale and asked her friend to tell her the exact height. Both of them told the correct height but their answer were different. Okay, so उन्होंने दोनों ने आंसर बताया बट उनका जो आंसर था वो डिफर कर रहा था. ठीक है,
डिफरेंट था. So when we look at the different measuring tapes, we can see same measurements written in more than one way. तो आप स्केल में देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है और यहाँ पे इंचेस में लिखा हुआ है. ठीक है. सो इसका मतलब ये होता है, ये चेंज होता रहता है. ठीक है. सो सिंगल यूनिट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर, dm मतलब डेसीमीटर, m मतलब मीटर, DAM मतलब डेकामीटर, HM मतलब हेक्टोमीटर, KM मतलब किलोमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए सबसे जो छोटा होता है वो होता है मिलीमीटर, देन कम्स सेंटीमीटर, देन कम्स इन DM दैट इज डेसीमीटर, देन मीटर, देन DAM मीन्स डेकामीटर, HM मीन्स हेक्टोमीटर, KM मीन्स किलोमीटर. ठीक है. तो ये चेंजेस होते रहते हैं. तो देखिए आप मिलीमीटर में 10 ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर मिलेगा. ठीक है. और सेंटीमीटर में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर मिलेगा. वैसे ही अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर को तो हमें मिलेगा मीटर. ठीक है. 100 से आप ऐड करेंगे तो आप देखिए अगर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यू विल गेट 300. ठीक है. 300 तो 300 मीटर्स मतलब 300 सेंटीमीटर्स मतलब 300 मीटर. ओके. 3 मीटर तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर. ठीक है. तो ये होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो ये होता है. इन अबो चार्ट एवरी टाइम व्हेन वी मूव टू द राइट लेफ्ट मस्ट व्हेन वी मूव टू द लेफ्ट वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच यूनिट. ठीक है. वेयर एज व्हेन वी मूव टू राइट वी मस्ट डिवाइड बाय 10 फॉर ईच यूनिट. तो देखिए लेफ्ट में मूव करेंगे आप इस तरफ, जब ग्रेटर करते जाएंगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. ईच यूनिट को वी मस्ट मल्टीप्लाई 10 बाय ईच यूनिट, एंड व्हेन वी मूव टू राइट देन वी डिवाइड बाय 10. ठीक है. सो डबल यूनिट एरिया मिलीमीटर स्क्वायर. ओके. मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, DM डेसीमीटर स्क्वायर. ओके. वैसे होता है. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मिलीमीटर स्क्वायर में आप कितना ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे तब सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है आपको. और इसे सेंटीमीटर स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आपको क्या मिलेगा, मिलीमीटर मिलेगा. ठीक है. तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको 10,000 से करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर के लिए. सेंटीमीटर स्क्वायर को 10,000 से आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तब जाके आपको मीटर स्क्वायर मिलेगा. ओके. तो इस टाइप से यहाँ पे आपको दिया हुआ है. तो एरिया ऑफ पाथ, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें. कन्वर्ट 3 किलोमीटर इनटू मीटर. तो 1 मीटर इक्वल्स टू ठीक है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स. ठीक है. 1000 मीटर्स होता है. तो देखिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स था तो 3 किलोमीटर 3000 मीटर्स. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3000 मीटर्स. ठीक है. कन्वर्ट 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर. तो देखिए 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे 40,000 को. ओके. तो 40,000 को जब आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 40,000 को जब डिवाइड करेंगे 4 मीटर स्क्वायर मिल गया. ठीक है. तो देखिए मीटर स्क्वायर में आपका कन्वर्ट हो गया. 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपने डिवाइड कर दिया 10,000 से, सो यू विल गेट द आंसर दैट इज 4 मीटर स्क्वायर. सॉरी. अब देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें. अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 25 मीटर इज सराउंडेड बाय अ वुडन पाथ. ओके. विथ अ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 2.5 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. तो ये पाथ का एरिया फाइंड करना है हमें. ठीक है. सो द वुडन पाथ इज 2.5 मीटर वाइड. ठीक है. 2.5 मीटर वाइड है वुडन पाथ. ये देखिए ये वाला जो पाथ है 2.5 मीटर वाइड है. सो QR इक्वल्स टू BC माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ द पाथ दैट इज इक्वल्स टू 25 मीटर माइनस 2 इंटू 2.5. ये देखिए 2, ये दोनों साइड तरफ है ना, तो दोनों साइड का कैलकुलेट करना है हमें. सो देखिए यहाँ पे हमने 2 इंटू कर दिया. ओके. So what we will get 25 meter minus 5 meter, that is 20 meters. Area of the wooden path is equals to area of square ABCD minus area of square PQRS. तो PQRS ABCD minus PQRS. ठीक है. PQRS. तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर. तो साइड स्क्वायर होता है एरिया का, स्क्वायर ऑफ एरिया. तो 25 का स्क्वायर 625 मीटर्स और यहाँ पे अंदर 20 का स्क्वायर 400 मीटर्स. तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 225 मीटर स्क्वायर. ठीक है.
तो ये आपको इसका आंसर मिल गया। तो इस टाइप से आपको इसे सॉल्व करना था। वैसे यहाँ पे और क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए। देखिए कन्वर्शन यूनिट में हमने क्या देखा, सिंगल यूनिट दैट इज पेरीमीटर एंड स्क्वायर यूनिट्स एरिया, तो हमने इसे कन्वर्ट करना देखा। ठीक है, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग 490 मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है। ओके, सो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे।